یسوع مسیح کے زندہ جلالی پرفضل نام میں سب کو سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند کی سلامتی آپ کی زندگی میں ہو آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس لمحہ کے لیے، وقت کے لیے جو خداوند نے بخشا کہ آپ کے ساتھ مل کر آج اتوار کی عبادت میں خدا کے پاک روح کو ویلکم کر سکیں۔ کتنے ہیں جو خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ Praise the Lord۔ جب بھی خدا کی آواز کو سننے کے لیے آپ تیار ہوں، آپ کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ ایک بڑی ایکسپیکٹیشن کے پاس جب خداوند کی حضوری میں آئیں گے تو بڑی بلیسنگ کو حاصل کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آج کا جو میرا ٹاپک جس پہ خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے گراس ان دا ڈیزرٹ، صحرا میں گھاس یا بیابان میں گھاس۔ کتنے ہیں جنہوں نے کسی بیابان کے اندر، صحرا کے اندر گھاس کو دیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، پیچھے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ صحرا جو ہوتا ہے، بیابان جو ہوتا ہے، وہ ڈیزرٹ جو ہے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر دور دور تک کوئی ہریالی کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور یہ گرمی تو کم ہے، بہت ہی شدید گرمی ہوتی ہے۔ لاہور پاکستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے صحرا کے علاقے ہیں جہاں پر پانی کی قلت پائی جاتی ہے، اور بہت ہی ایسا ایٹماسفیئر ہے۔ کبھی آپ نے گرمیوں کی چھٹیوں میں یا کسی موسم میں کسی کو دیکھا ہے کہ میں صحرا پہ جو ہے بیابان میں ویکیشن کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں، آپ ہر کسی کے منہ سے سنیں گے کہ ہم ہلز پر، ماؤنٹینز پر، ہریالی پر، خوبصورت جگہ پر جو ہے وہ ویکیشن کرنے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج جو کلام میں آپ کو سنانے کو ہوں، میرا اور آپ کا خدا صحرا میں بھی ہری گھاس اگانے کے لیے قدرت، طاقت اور زور رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور نہ صرف زور رکھتا ہے بلکہ آج صبح اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو بنجر ہو چکی ہے، جو بیابان ہے، جو صحرا ہے، جہاں پر کوئی پیداوار نظر نہیں آتی، آج خداوند وہاں پر بھی آپ کے لیے ہری ہری گھاس کو اگا دے گا۔ If you believe then say amen۔ Praise the Lord۔ آئیے میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کے 6ویں باب کو دیکھیں گے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے اس حوالہ کے اندر کہ بگننگ کے اندر تو وہاں پر بار بار ذکر ہوتا ہے کہ وہ ایک بیابان میں موجود تھے، لیکن while they were waiting خدا نے وہاں پر ان کے لیے گھاس کا انتظام کیا۔ اور میرے عزیزو، یہ گھاس جو ہے جس کا آج میں ذکر کر رہی ہوں، it's while you waiting God made your harder place easier۔ آج کی جو گھاس جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، اس کی ڈیفینیشن اور اس کا میننگ یہ ہے کہ جب آپ انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی معجزہ آپ کی زندگی میں ہو یا کوئی کام آپ کی زندگی میں ہو، تو اس انتظار کے دوران ہی خداوند اس بیابان کے اندر، اس صحرا کے اندر گھاس کو آپ کے لیے اگا دے گا۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم مرکز کی انجیل 6ویں باب کی 36ویں آیت کے اندر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے، اکثر ہم نے اس حوالے کو پڑھا لیکن آج سے پہلے خدا کے پاک روح نے کبھی اس بات کو مجھ پہ ریویل نہیں کیا۔ رات جب خدا کے پاک روح نے مجھے یہ پیسج دیا، I was thinking کہ میں نے بہت دفعہ اس ورڈز کو کوٹ کیا، بٹ وہاں پہلے کسی اور بات سے، کسی اور حوالے سے، کسی اور بات سے ہم نے انکریجمنٹ پائی، لیکن کل رات جب میں خدا کے کلام کو تیار کر رہی تھی تو خدا نے یہاں پر ایک بات کو مجھے دکھایا جس سے مجھے انکریجمنٹ ملی۔ یہ حوالہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ حوالہ، یہ پیسج جو ہے مشہور ہے۔ اکثر جب بھی ذکر ہوتا ہے 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کی یا ملٹیپلیکیشن کی یا برکت کی بات ہوتی ہے تو ہم we always call this passage، ہمیں ہمیشہ یہ حوالہ یاد آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم اس حوالے کے اندر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ملے گا مرکز کی انجیل 6ویں باب کے اندر، پریز دی لارڈ۔ یہاں پر اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر جمع تھے وہ کیا تھے، کس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پریز جیسس۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بار بار اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جو ایک بیابان جگہ تھی۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، لکھا ہے 35ویں آیت کے اندر، جب دن بہت ڈھل گیا
تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کے کہنے لگے یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اگر ہم پہلے بھی اس پیسج کو دیکھیں تو اگر پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جو بیابان تھی، وہاں پر کوئی ہریالی نظر نہیں آ رہی تھی، ایک ایسی جگہ تھی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ویران جگہ تھی۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام کے اندر ایک اور بات دیکھیں 39 ورس کے اندر ہم دیکھیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کہنے لگا اپنے شاگردوں کو کہ نہیں ان کو فارغ نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے روٹی کا انتظام کرو۔ شاگرد یسوع کو کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ تو بیابان ہے، ویران ہے، ان کو فارغ کر دے۔ اگر آپ پورے چیپٹر کو گھر جا کے پڑھیں تو پہلی ورسز کے اندر آپ کو ملے گا جہاں پر 1 سے 2 بار لکھا ہے کہ بیابان تھا، لیکن یہاں پر 39 ورس کے اندر دیکھتے ہیں اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ پریز the Lord۔ میرے چیزوں while they were waiting for their miracle، جب وہ انتظار کر رہے تھے وہاں پر کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، but while they were waiting، جب وہ انتظار کر رہے تھے تو خدا نے وہاں پر ہی ہری گھاس کو اویلیبل کر دیا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جگہ ویران ہے، لیکن اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیٹھنے لگے، جب وہ کھانے کا انتظار کر رہے تھے during the time of waiting، خدا نے وہاں پر ہری گھاس کو اگا دیا۔ Praise the Lord۔ میرے عزیزو، God is about to make your harder place easier۔ آج میں اس بات کا اعلان کرتی ہوں خداوند آپ کی زندگی کے اندر مشکل چیزوں کو آسان کر دے گا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، where did you get the strength؟ آپ کو زور کہاں سے ملتا ہے؟ آپ کو قوت کہاں سے ملتی ہے؟ مشکل حالات کے اندر جب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، how you are able to have a good attitude when negative things are happening۔ سوچئے جب ارد گرد تو بہت سے لوگ جو ہیں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ریلیکس ہوتے ہیں۔ کیسے؟ یہ کہنا بڑی آسان بات ہے، اور بہت سے لوگوں کا ایسا ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے کوئی مینوں گل کر کے جائے کتے۔ This is normal، یہ ایک نیچرل بیہیویئر ہے، بٹ جب لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، لوگ آپ کو لان تان کر رہے ہوں، اور still آپ کا ایٹیٹیوڈ ویسا ہی ہو جیسا یسوع مسیح کا ہو، ان کی باتوں سے آپ پر کوئی فرق بھی نہ پڑ رہا ہو، اور still آپ پیس میں زندگی بسر کریں۔ ہاؤ؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا اس ہارڈر پلیس کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر جو صحرا کی مانند ہے، آپ کے لیے ہری ہری گھاس کو اگاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب آپ کی زندگی میں چیلنجز آ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ نارمل رہتا ہے، آپ اطمینان میں رہتے ہیں۔ وہ کیوں ہے میرے عزیزو؟ بیکاز وہ آپ کی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہو رہی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ نے خدا کے ساتھ دل کو لگایا ہے۔ جب ایسی ساری سچویشن میں آپ ریلیکس ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے that God's giving you grass in the desert۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیابان میں، صحرا میں بھی وہ آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیز، اگر کوئی سک بھی ہو جائے، بیمار بھی ہو جائے، عام نارمل شوگر کی اگر بیماری ہو نا، تو ڈاکٹرز اکثر اس بات کو کہتے ہیں دوائی چاہے آپ کھائیں نہ کھائیں، صبح صبح آپ کسی پارک میں جائیں جہاں پر ہری گھاس لگی ہو، آپ وہاں پہ واک کریں۔ کیا ہے کہ ہری چیز جو ہے، گھاس جو ہے، درخت جو ہے، گرینری جو ہے، it shows prosperity۔ آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، اس سے آپ فریش فیل کرتے ہیں۔ That's mean کہ چاہے آپ کا دشمن، چاہے ابلیس کتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں، کینسر، ٹی بی، ہیپاٹائٹس، کووڈ، غربت، کتنی بھی چیزیں کیوں نہ لگا لے، آپ پھر بھی بحال ہی رہیں گے، آپ پھر بھی پیس میں رہیں گے، کیونکہ وہ آپ کے لیے صحرا میں گھاس کو پیدا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔
the right people, divine connections are headed your way. आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे सीजन में से गुजर रहे हैं, ऐसी बीमारी का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, अज़वाजी जिंदगी में प्रॉब्लम है, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, तो मेरे अजीजों, right people, divine connections are headed your way. खुदावंद आपके लिए आसमान से मदद मुहैया कर रहा है. वो बैठा नहीं हुआ. हो सकता है कि आपको लग रहा हो nothing is happening, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन मेरे अजीजों, आपको नजर नहीं आ रहा. He is still working on your behalf. वो आपके लिए काम कर रहा है. हालेलुया. एक और बात मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ, इब्लीस चाहे कितनी भी बार आपको गिराने की कोशिश क्यों ना कर दे, द डेजर्ट, सहरा, बियाबान आपकी मंजिल नहीं है मेरे अजीजों. That's not your destiny. You are not called to be stuck in the desert. खुदावन ने इसलिए आपको नहीं बनाया कि आप सहरा में आ जाए, या बंजर जमीन आपके लिए नहीं बनी. उसने आपके लिए सैराब जमीन को बनाया है, क्योंकि वो जहां बोता भी नहीं, वहां से भी काटने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है. हालेलुया. और मेरे अजीजों, लॉस हो जाए, चीजें छीन ली जाएं, कारोबार में लॉस हो जाए, परेशानी आ जाए, आपको चाहे लगे ओ अब तो मेरा वो कनेक्शन भी चला गया, वो भी मुझे छोड़ गया है, ओ यही तो मेरा आमदनी का जरिया था, ओ अगर ये बीमारी मुझे लग जाएगी, किसी भी तरह का लॉस अगर आपकी जिंदगी में आ रहा है, there is a good news for you this morning. आज सुबह आपके लिए खुशखबरी है. जो यीशु के मानने वाले हैं, लॉस पर उनकी स्टोरी एंड नहीं होती. हालेलुया. The desert is temporary. ये सहरा, ये बियाबान जिसमें आज आप हैं, ये वक्ती तौर का है. टेम्परेरी चीजें, अगर आप मार्केट से कोई ऐसी चीज बाय कर लें हाँ, जो नाकस हो, तो थोड़े दिन ही चलने के बाद वो टूट जाती है, खराब हो जाती है. लेकिन अगर कहीं से पायदार और अच्छी चीज खरीदी हो, कोई परमानेंट आप चीज हासिल करें, घर ही देख लें, अगर आप किराए पे लेते हैं वो टेम्परेरी होता है. अक्सर का बहुत से लोग जो हैं घर को तब्दील करते हैं, उस घर में कोई ना कोई मसला बन जाता है, लेकिन अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट हो तो फिर वहां से आपको कोई हिला नहीं सकता. तो मेरे अजीजों, द डेजर्ट, ये बियाबान, ये टेम्पररी है, क्योंकि यू आर नॉट कॉल्ड टू बी इन द डेजर्ट. खुदावन ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप सहरा में रहे. लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि अगर सहरा में भी होंगे तो वो सहरा में भी आपके लिए रास्ता बना देगा. वो आपके लिए सहरा में भी हरी हरी घास को लगा देगा. द लॉस इज टेम्पररी. जिस लॉस का आज आप शिकार है, हो सकता है माली लॉस है या सेहत का लॉस है, ये भी टेम्पररी है. इसी तरह जिस मुश्किल में आप हैं, ये भी टेम्पररी है. जिस बीमारी में आप हैं, ये भी टेम्पररी है. जिस डिप्रेशन में आप हैं, वो भी टेम्पररी है. क्योंकि अगर आपने यीशु को पकड़ा हुआ है, तो यीशु चाहता है कि आप जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी पाए. और कसरत की जिंदगी में बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं, बल्कि बरकत ही बरकत है. खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. एक और मिसाल खुदा के कलाम में से हम देखेंगे. यूसुफ को आप सब जानते हैं. खुदा के कलाम में कितने हैं जो यूसुफ से वाकिफ हैं? Praise the Lord. मेरे अजीजों, यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, जानते हैं. द स्टोरी ऑफ जोसेफ क्या था? अपने ही घर वालों ने उसको बेच दिया, वो गुलामी के लिए बेचा गया. उसके अपने भाइयों ने, उन्होंने उससे हसद की, और उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा हर्डल का टाइम आया, मुश्किलात का टाइम आया, एक डेजर्ट के एरिया के अंदर से वो भी गुजरा. लेकिन यूसुफ ने क्या किया मेरे अजीजों? जोसेफ स्टेड लॉयल, फेथफुल एंड कमिटेड. यूसुफ वफादार रहा, खुदा के साथ चलता रहा, और जो ख्वाब उसने देखा था उसके साथ कमिटेड रहा. उसने ख्वाब को थामे रखा. ये नहीं कहा कि जिसने दो बातें कही वो जरा हरियाली, टेम्परेरी हरियाली भी होती है, नजर आई और उधर को चला गया. नो,
This was not the case with Joseph. Joseph के साथ, यूसुफ के साथ ऐसा नहीं था. यूसुफ गुलामी में भी था, लेकिन क्या हुआ, उस डेजर्ट के अंदर भी वो फेथफुल रहा. उस हिस्सा में भी खुदा ने उसके लिए हरी घास को मुहैया किया. और फिर क्या हुआ मेरे अजीजों, यूसुफ मिस्र का ही वजीर आजम बना. He became the prime minister of Egypt. और फिर हम देखते हैं खुदा ने उसको सहरा में से निकाल कर जो वादा किया था, जिस जमीन का, खुदावंद उस पर उसको लेकर आया. और जिस बात की मैं बात कर रही थी कि अगर आपके खिलाफ भी बातें हो रही हों, अगर आप यीशु के साथ लॉयल हैं, कमिटेड हैं, फेथफुल हैं, तो आपका एटीट्यूड ही तब्दील हो जाएगा. यूसुफ के अंदर क्या कोई बदले की रूह आ गई थी? यूसुफ के अंदर क्या रिवेंज की रूह आ गई थी? नो. यूसुफ उस सारे सहरा के पीरियड में से गुजर कर भी गो के उसके अपनों की तरफ से ही था, लेकिन क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार था, क्या हुआ कि उसने फिर भी अपने भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ, उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं था. उसका एटीट्यूड वैसा ही था जो खुदा का कलाम हमें हुक्म देता था. एक और बात जो हमें सीखने की जरूरत है, जब हम सहरा में से गुजरे, हमें खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है. दिन रात दुआ करने की जरूरत है. ये ना हो कि इब्लीस आए और हमें वहां पर ही तबाह और बर्बाद कर दे. जब हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे, दुआ और रोजा में ठहरेंगे, फिर ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में मायने नहीं रखती. मेरे चीजों, we don't like desert. जैसे मैंने पहले आपको कहा, बहुत कम ही लोग हैं जिनको सहरा या बियाबान पसंद है, क्योंकि हम आसान चीजों को ढूंढते हैं. लेकिन एक और बड़ी बात जो आज मैं चाहती हूं कि आप सीखें, वो ये है कि डेजर्ट इज नेसेसरी. अगर आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो ये बियाबान इन्हें भी आना ही आना है. अगर मुश्किल आ भी जाएगी तो परेशानी होना, बीमारी आ भी जाएगी परेशानी होना. अय्यूब की तरह कहना है, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, वही आपको संभालेगा, वही आपको बचाएगा, वही आपको सहराओं में से निकालेगा, वही आपके लिए सहरा में नदियां जारी कर देगा. हालेलुया. क्यों मैंने कहा मेरे अजीजों, हमें ये सहरा बियाबान पसंद नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन ना होती, यूसुफ की अगर मुखालफत ना होती, यूसुफ को अगर बेचा ना जाता, अगर यूसुफ ना उम्मीद ना होता, तो यूसुफ कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता था. इसलिए अगर मुखालफत होती है, प्रेज जीसस, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, उसको उसके अपनों ने बेच दिया. अगर आपको भी कोई अजीज रिश्तेदार जिस पे आप बड़ा ट्रस्ट करते हैं, वो भी धोखा दे जाए, परेशान नहीं होना. कई लोग आम ही दुनिया में कोई धोखा दे जाए, आगे सोनिया भी बात कर रही थी, उसी के साथ रिलेट हो जाएगी, तो बड़े ही परेशान हो जाते हैं लोग और मरने मराने वाली हालत हो जाती है. ये तो एक टेम्परेरी थिंग है ना. आपका खुदा कभी आपको मरने नहीं देगा, आपका खुदा कभी आपको धोखा नहीं देगा, आपका खुदा आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा. ये बात मैं दावे के साथ आपको कहती हूँ, चाहे आपके माँ बाप, चाहे आपके रिश्तेदार आपको छोड़ जाए, लेकिन आपका और मेरा खुदा आपको और मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा. और वो कहता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हर रास्ता ना हो, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा दहना हाथ पकड़कर तेरी मदद करूंगा. मेरे जीजो, आज इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं, अगर हमारा हाथ किते वड्डी जगह ते ही पैंदा है ना, तो साढ़े पैर ही थले नहीं लगते. किसी जगह पर अगर हमारी सिफारिश ही हो ना, हम किसी को जानते ही हो, तो हम अपने आप को बड़ा समझते हो, मेरी तो बड़ी वैल्यू है. लेकिन मेरा अजीजों, अगर आपका हाथ यीशु के हाथ में है, तो वाकई आपके पांव जमीन पर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मेरा और आपका फखर, मेरी और आपकी ढाल, मेरी और आपकी सिपर, मेरा और आपका खिला, मेरा और आपका मुहाफिज याकूब का खुदा है. हालेलुया.
जो ना ऊँघता है ना सोता है। आपको मैं एक और बात बताऊंगी, मैं साथ साथ बातें भी करती हूँ ताकि एक्सपीरियंस की बातें भी हों। अपने कोई किसी को आप बड़े असर रसूख वाले को जानते हो ना, मुसीबत के वक्त एक फोन करके देख लें, वो खुशी के वक्त तो आपके साथ होगा, मुसीबत के टाइम या मुश्किल में, बीमारी में, जब आपको जरूरत होगी, उन 3600 काम कार बैठे ही आ जाएंगे। लेकिन मेरा और आपका यीशु, कलाम में लिखा है, जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा। आप इस फोन को मिलाइए जो खुदा का जिंदा कलाम है, आप इस कलाम को खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर किसी भी मुसीबत में क्यों ना होंगे, एग्जैक्ट वो वर्ष आपको मिलेगी, खुदा के कलाम का एग्जैक्ट वो हवाला खुलेगा जिससे आप तसल्ली भी पाएंगे और आपके सारे काम हल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, एक और हवाला खुदाम के कलाम में से जल्दी से हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, खुदाम की तमजीद हो। अगर हम यसाया की किताब के अंदर देखें, जल्दी से मैं आपके लिए मेमोराइज ही कर देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर हम देखते हैं वो जिनका तवक्कल, जिनकी उम्मीद जिंदा खुदा पर है, वो किस दरख्त की मानद है। किसी को वर्ष आती है जी? वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाए। लोग अपनी फसल लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, बड़ा मसला होता है जी, पानी ना मिले, दरख्त वहां पर ही खुश्क हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जो खुदावंद पर उम्मीद रखते हैं, मेरे अजीजों, उनके लिए लिखा है कि वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। हालेलुया। यानी जब हम खुदावंद पर उम्मीद रखेंगे तो हम उस दरख्त की मानद होंगे जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा। वो हमें किसी भी चीज से, मेरे अजीजों, खुश्क साली हमें आने नहीं पाएगी, बल्कि वो हमारी जिंदगी के अंदर बहाली का, शिफा का काम करेगा। एक और बात मेरे अजीजों, इस सहरा के अंदर से जब हम गुजर रहे हो, जो हमें सीखने की जरूरत है वो ये है, that victory begins in our thinking। फतह का काम जो है हमारी सोच से ही शुरू होता है। हालेलुया। अगर आप ईमान रखेंगे, आपकी जहन के अंदर विक्ट्री होगी, आप हमेशा फतह का ऐलान करेंगे। अभी फतह नहीं भी मिली होगी, दिन रात कहेंगे, यस्सु आई डिक्लेयर विक्ट्री, मैं फतह का ऐलान करता हूं। तो हमें फतह से बढ़कर गलबा देना। बीमारी के अंदर है, कहना शुरू कर दें, आई एम हील्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना लगी है, कहना शुरू कर दें, यीशु के फजल से मैंने शिफा पाई है। जब आप ऐसा कहेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह मेरे अजीजों, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग नेगेटिव, बहुत से लोग मनफी बातों को बोलते हैं, और मनफी बातों को बोलने की वजह से क्या होता है, वही मनफी चीजें उनकी जिंदगी में पूरी होना शुरू कर देती हैं। हम मनफी बातें जब बोलते हैं तो हम इब्लीस की फौजों को असेस दे देते हैं कि वो वैसे ही काम करना शुरू कर दें जैसा आप बोल रहे हैं। कलाम के अंदर लिखा है, जिंदगी और मौत का इख्तियार तेरे मुंह के अंदर है। इफ यू हैव अथॉरिटी, तो फिर आपको तो विक्ट्री क्लेम करने की जरूरत है, आपको हीलिंग क्लेम करने की जरूरत है, प्रॉस्पेरिटी क्लेम करने की जरूरत है, ताकि आप उन सारी चीजों को हासिल करें। और मेरे अजीजों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं, जब आप खुदावंद पर भरोसा करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम आएगा। मैं वर्ष निकालना चाह रही थी, आए मेरे साथ निकालिए, यिर्मयाह उसका 17वां बाब। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी 7वीं और 8वीं आयत खुदाम के कलाम में से हम पढ़ेंगे।
लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद से है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उससे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। हालेलुया। कितने हैं जो बिलीव करते हैं यू आर लाइक दिस ट्री? हालेलुया। जितने तो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं और जिनकी उम्मीद का खुदावंद है, ये बात उनके लिए लिखी है कि वो उस दरख्त की मानद होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसकी जड़ें जो है वो बड़ी मजबूत हैं, दूर दूर तक फैली हुई हैं, और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाया। और गर्मी यानी सहरा, मुसीबतें, मुश्किल, अक्सर माएँ जो है वो अपने बच्चों को कहती हैं गांव में चले जाओ पुत्र तेनू तत्ती हवा ना लगे, या बड़ों के पास बैठो तो वो इस तरह के फिक्रे बोलते हैं। तो यहाँ पर खुदा का कलाम किन के लिए क्या कह रहा है? उन लोगों के लिए जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जिनकी उम्मीद का खुदा है। खुदावंद कह रहा है कि आपको गर्मी का भी खतरा नहीं है, किसी भी चीज का खतरा नहीं है, चाहे आप सहरा में भी चले जाएं, चाहे पाताल की तह में भी चले जाएं। वो कहता है कि तुम्हारी जड़ें मेरे साथ जुड़ी हुई है, और जब आप अपनी जड़ों को खुदा के साथ जोड़ देंगे तो कोई आपको खुदा से जुदा नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, और मलाउन है वो शख्स जो किसी बशर को अपना जोरे बाजू। तो मेरे अजीजों, अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर मौसम के अंदर, चाहे गर्मी आ जाए, चाहे सैलाब आ जाए, चाहे ठंड हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, आप सरसब्ज रहें, आपका पत्ता भी ना मुरझाए, और ऑल सीजन फ्रूट। कितनी खूबसूरत बात है। मैंगो सिर्फ गर्मियों में मिलता है, अगर हम माल्टे देखें सिर्फ सर्दियों में। दिस इज अ नेचर फ्रूट्स की मैं बात कर रही हूं, लेकिन खुदा स्पिरिचुअल फ्रूट्स की बात कर रहा है। नेचुरल फ्रूट्स भी आपको देगा, स्पिरिचुअल फ्रूट्स भी देगा, और ऑल सीजन। हालेलुया। फिर कभी आप बांझ नहीं रहेंगे। किसी भी सीजन में आप, अक्सर कारोबारी लोग कहते हैं ए सीजन जड़ा है ना, ए सीजन च कारोबार बंद हो जाता है। But what a blessing for those who trust in the Lord. उन लोगों के लिए कितनी बाबरकत बात है जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। आप फ्रूट ही प्रोड्यूस करेंगे, आपसे ब्लेसिंग ही निकलेगी, बरकत ही निकलेगी, शिफा ही निकलेगी, प्रॉस्पेरिटी ही निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, आपको भी कहने की जरूरत है थैंक यू जीसस, आई एम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। आपको अपने मुंह से इकरार करने की जरूरत है कि यीशु तेरा शुक्र हो, मैं तुझ में मजबूत हूं। मैं अकेला या अकेली तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब तू मेरे साथ है, आई कैन डू एवरीथिंग इन जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने हैं जिनको कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है? प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा रह गया, गर्मी तो नहीं लग रही। कितने हैं जो और खुदा के रूह की खुराक को लेना चाहते हैं? आए जोरदार तालियों के लिए खुदा के पाक रूह के लिए जो इस वक्त कसरत से जुम्बश कर रहा है और आपकी जिंदगी में सहरा में इस वक्त वो घास लगा रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहना शुरू कर दीजिए कि ये यीशु तेरा शुक्र हो कि तू मेरी जिंदगी में टेढ़ी राहों को सीधा कर रहा है। कहीं पर भी आपकी जिंदगी में मुश्किल है, कन्फेस इट विद योर माउथ।
आपने अपने लिए बरकत अपने मुंह से लेनी है. जो बातें आपने अपने मुंह से कहनी है, you are gonna receive that. क्योंकि कलाम में लिखा है, तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा. मेरा अजीजों, he has grace for you in every season. जैसे अभी हमने पहले पढ़ा, all season, चारों मौसमों में कलाम में क्या लिखा जी? और तू फल लाने से बाज ना रहेगा, उसका फजल आपके और मेरे लिए काफी है. प्रेज द लॉर्ड. उसका फजल हमारे लिए काफी है. बीमारियों से शिफा पाएं, अबलीस पर गालिब पाएं और यीशु के जलाल में बढ़ते चले जाएं, बरकत पाएं, तरक्की पाएं, बहाली पाएं. इसी तरह मेरे अजीजों, शुक्र अदा कीजिए. उससे कहिए, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू मुझे हरी हरी घास पर चलाता है. डोंट कंप्लेन अबाउट द डेजर्ट. बहुत से लोग मेरे अजीजों क्यों बरकत नहीं पाते? तवक्कल तो खुदा पर है, लेकिन 24 घंटे दाना दा रोना मुकदा ही नहीं. जो मर्जी उन्हें दे दें. कई ऐसे लोग भी इब्लीस ने उनको जकड़ा हुआ है, इतने कंप्लेनिंग बिहेवियर में रहते हैं, जो कुछ मिल जाए ना शुक्रापन उनकी जिंदगी में है. मेरे अजीजों, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी तू ना कर. खुदा के कलाम में अगर 103 ज़बूर में पढ़ें तो लिखा उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर. There are so many things to thanks to him. बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपका शुक्र गुजारी करना बनता है. आप क्यों एक ही चीज जो आपके पास नहीं, 1000 चीजें छोड़कर उसी एक चीज का रगड़ा लगाते रहते हैं और कंप्लेन ही करते रहते हैं. उनकी दुआ भी इसी बात से शुरू होती है कई लोगों की, और खत्म भी इसी बात पे हो जाती है. आज मैं आपको कहना चाहती हूं, अगर आप चाहते हैं कि सहरा में वो आपके लिए हरी हरी घास लगा दे, स्टॉप कंप्लेनिंग. हाय मैं मार गई, हाय का लफ्ज छोड़ दीजिए. यीशु तेरा शुक्र हो. आपका कदम बेड से नीचे उतरे, यीशु तेरा शुक्र हो. आपके मुंह से बार बार ये लफ्ज निकलना चाहिए. उठते बैठते चलते फिरते जब भी अगली सांस लें, शुक्र अदा करें कि उसने आपको एक सांस दी. बहुत से लोग कोविड के सीजन में जब वेंट पर पड़े और इतना बड़ा बड़ा बिल जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिया, तो उन्होंने शुक्रगुजारी की कि यीशु चंद दिन सांसें लेने पर इतना पैसा देना पड़ा, तो कितना क्यों ना तेरा शुक्र अदा करे जो तुम्हें हमें हर दिन नया देता है और सांसें भी देता है. तो शुक्रगुजारी की जोरदार तालियां बजाएं, इतनी जोर से तालियां बजाएं कि अगर आज से पहले आप कंप्लेनिंग बिहेवियर में रहते थे, स्टॉप दैट कंप्लेनिंग बिहेवियर एंड स्टार्ट थैंक्सगिविंग टू गॉड. कंप्लेनिंग बिहेवियर छोड़कर शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए. खुदावंद आपको बरकत देगा और फिर खुदावंद आपको सहरा में फ्लरिश करेगा, बहाल करेगा और आपको पेंडेमिक के अंदर, मुसीबतों में, मुश्किलात में प्रॉस्पर करेगा. चाहे मुल्क में काल क्यों ना हो, वो आपके लिए बहाली को लाएगा. किसी के पास जॉब हो ना हो, आपकी जॉब को कोई छीन नहीं सकता. आपके खाने को, आपकी ब्लेसिंग को कोई छीन नहीं सकता. हालेलुया. Why? Because the Most High God is on our side. क्योंकि जिंदा खुदा, अजीम खुदा हमारे साथ है. हालेलुया. जो सहराओं में नदियां लगाने की कुदरत रखता है और खुश्क जगह पर मेरे और आपके लिए हरी हरी घास को उगाना चाहता है. उम्मीद यीशु पर रखिए, तवक्कल खुदावंद पर करें और वो आपकी जिंदगी में काम करेगा. हो सकता है कि आज आप भी इसी तरह से हो जैसे बंजर जमीन है. हो सकता है आपके पास औलाद ना हो, बीमारी हो, घर में लड़ाई झगड़ा है, तंगी है, पीस ही नहीं. बहुत से लोगों के पास रुपया, पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन इत्मीनान नहीं. वाई? ये इत्मीनान एक ही शख्स देता है, ये खुशी एक ही शख्स देता है, और ये खुशी जो जिंदा खुदा देता है ना, वो कोई इंसान चुरा नहीं सकता. हालेलुया.
हालेलुया। मेरा जीसु, आज मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से रिलीज करना चाहती हूँ। आज खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर फेवर को, आज खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर हीलिंग को, इसी तरह फ्रीडम को, अबंडेंस को जारी कर रहा है। मेरा जीसु, खुदावंद आपकी जिंदगी में तरफदारी को, शिफा को, आजादी को और कसरत की बरकत को इस वक्त जारी कर रहा है। और वो आपको इस जिंदगी में बरकत लाना चाहता है, वो आपको मजबूत कर रहा है, वो आपको अनॉइंट कर रहा है, वो आपको इक्विप्ड कर रहा है, वो आपको कुव्वत से भर रहा है, ताकि आप काल के अंदर भी खुशहाली को हासिल करें, पेंडेमिक्स के अंदर भी बरकत को हासिल करें, और सहरा में भी आप फूल की तरह खिलते रहे। इफ यू बिलीव एंड रिसीव, से आमेन। जितने ईमान रखते हैं और इस बात को रिसीव करते हैं, आए बुलंद आवाज से कहिए आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी बात, उसके बाद एंड करूंगी। मैंने अपना कलाम यहाँ पर ही प्रिपेयर करके बाइबल को सुबह 4 बजे बंद कर दिया, और जैसे ही दुआ कर रही थी, दुआ में खुदावंद ने मुझे कहा ओपन अप द बाइबल अगेन। मैंने दोबारा से बाइबल को खोली, और दिस इज बिकमिंग नाउ यूजुअल फॉर मी। खुदावंद ये अब आम ही कर रहा है, ऐसे ही होता है। और मैंने कहा अब खुदावंद तू क्या चाहता है। 2-3 हवाले तो मैंने लिख लिए हैं। आई बिलीव 1 word इज एनफ टू शेयर द गॉस्पेल। लेकिन खुदा ने एक खूबसूरत बात कही जिससे मैंने बड़ी बरकत पाई, और मैंने कहा अगर मैंने बरकत पाई है तो मेरा खानदान भी बरकत पाए। हालेलुया। कितने हार्वेस्ट फैमिली के हिस्सा हैं, इस लास्ट बात से आप बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक और, मैं कभी भी इस हवाले को इस स्टोरी के साथ विदाउट द रेवलेशन ऑफ गॉड अटैच नहीं कर सकती थी। थैंक यू जीसस फॉर दैट। लास्ट एग्जाम्पल जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, रूथ के बारे में कितने लोग जानते हैं। अक्सर रूथ का जिक्र हम करते हैं जब वफादारी की बात होती है, सास बहू का कोई जिक्र होता है, तो हम हमेशा मिसाल देते हैं रूथ कितनी अच्छी बहू थी। लेकिन आज हम रूथ की जिंदगी से एक बात और सीखेंगे जो खुदा ने उसकी जिंदगी में की। रूथ किस हालत में है? अनएक्सपेक्टेडली, पता तो नहीं था ना कि शौहर मर जाएगा, अचानक से शौहर मर गया, यानी उसकी जिंदगी में सहरा आ गया, डिस्करेज हो गई, हौसला टूट गया, कमी आ गई, लैक आ गया, घर में खाने को नहीं था, शौहर मर गया, कौन कमा के लाए। इस तरह लग रहा था कि रूथ का कोई अब मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन रूथ ने क्या फैसला किया? अपनी सास नोमी को कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगी। यहाँ पर हमें वाकई बड़ी अच्छी एक गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डॉटर इन लॉ मिलती है। उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगी, लेकिन देयर इज समथिंग मोर। हालेलुया। खुदा कभी भी आपको ऐसे से राह में नहीं भेजता जहां पर वो घास ना बना सके। हालेलुया। तो जब अगर आप मुश्किल में पड़े, बीमारी में पड़े, जस्ट डिक्लेयर दिस इज टेम्पररी। कि ये खुदावन तो अपने चाहने वालों के लिए हर एक बात में भलाई पैदा करता है। द मूवमेंट, जिस लम्हा आप खुदा के कलाम की आयत को बोलना शुरू करेंगे, वही काम आपकी जिंदगी में होगा। अब क्या था, रूथ के साथ जब वो चली गई, खेत में गिरी हुई जो गिर जाती थी, लेफ्ट ओवर होता था, चुगने वाले चुन लेते थे, जो गिर जाती थी, रूथ जाती थी एक एक करके वो उठाती थी, यानी टुकड़े। इन अदर वर्ड्स, वो जो बालें गिरी हुई थी वो टुकड़ों में उठाती थी। यानी अगर किसी का लेफ्ट ओवर हो तो वो एक तरह से वेस्ट होता है, वो वेस्ट मटेरियल को उठाकर उससे अपना पेट पालती थी। एक दिन क्या हुआ, बॉयज खेतों का मालिक था, उसने देखा, अपने एम्प्लॉयर्स ने उससे क्या कहा, किसने उसके दिल में डाला, उसने कहा कि जरा ज्यादा फेंक दिया करो। रूथ बड़ी खुश थी कि खुदा ने तो मेरे लिए हाल ही कर दिया है। और अब वो उठाती उन बालों को जो सिट्टे गिरते थे, इन अदर वर्ड्स, और घर लेके जाती और शुक्र कर रही थी कि वाह अब तो मेरा घर बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं और मेरी सास जो है
وہ کھاتے ہیں. یعنی صحرا میں اب اس کو گھاس میں لگائی تھی, لیکن میرا اور آپ کا یسوع ہمیں صحرا میں نہیں چھوڑتا. صحرا ہماری ڈیسٹنی نہیں ہے, ہماری منزل نہیں ہے. ٹیمپرری طور پر چاہے ہم اس صحرا میں آ جائیں, بیماری کی وجہ سے, مشکل, مصیبت, جھوٹ کی وجہ سے, لیکن وہ وہاں پر ساتھ ہے. ہری گھاس اس کی پریزنس کو شو کر رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, مشکل میں بھی آسانیاں پیدا کر رہا ہے. لیکن ایک اور بات جو آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو برکت ملے گی. میرے عزیزو, اب کیا ہوا؟ God did not speak to Ruth. خداوند نے روت سے تو نہیں کہا تھا کہ روت اب میں بوئز سے کلام کرنے کو ہوں اور وہ اپنے نوکروں کو کہے گا اور وہ تیرے لیے زیادہ چھوڑ دیں گے. نہیں. کیا ہوا تھا؟ خدا نے خود ہی اس بات کو بوئز کے دل میں ڈالا. غور سے سنیے. You don't know who God is speaking about being good to you. آپ نہیں جانتے, روت نہیں جانتی تھی کہ خدا اس وقت بوئز کے دل میں ڈال رہا ہے کہ وہ روت کے لیے اچھا کام کرے. اگر آج آپ مصیبت میں ہیں, بیماری میں ہیں, پریشانی میں ہیں, خدا کے پاک روح نے جو بات میرے دل میں ڈالی آپ نہیں جانتے, لیکن خدا کب, کہاں, کس سے آپ کے لیے اچھا بننے کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی میرے عزیزوں. God is working behind the scene in our life. اکثر اوقات خداوند سامنے سے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن اکثر اوقات خداوند پردے کے پیچھے بھی کام کر رہا ہوتا ہے. آپ مجھے ٹی وی پر دیکھتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا اس وقت کتنے کیمرہ مین, ہمارے پروڈکشن والے, ایڈیٹرز, MCR والے کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, جلدی جلدی سیٹ لگا رہے ہوتے ہیں, تارے لگا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اتنے زیادہ لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں so that they can present the show or me on the TV, تاکہ وہ اس پروگرام کو یا مجھے میری باتوں کو ٹی وی تک یا پاسٹر سے باندھ کے پروگرامز کو, باتوں کو ٹی وی تک پہنچا سکیں. بٹ اگر میں نہیں جا کے سارا کام کرنا ہو تو جنی دیر تک میں سیٹ تے بیٹھا میں تو ویسے ہی تھک جاؤں گی. ایسے ہے نا. کیا ہے یہاں پر؟ خدا نے آج میں آپ کو اس بات کی وجہ سے آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتی ہوں. جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ کو اپنی بیماری میں ابھی تک پروگرس نظر آ رہی ہے کہ نہیں, میڈیکل رپورٹس میں پروگرس نظر آ رہی ہے کہ نہیں, کاروبار میں, مشکل میں, مصیبت میں, خداوند آپ کے لیے پردے کے پیچھے سے بھی کام کر رہا ہے. وہ صحیح لوگوں سے کلام کر رہا ہے کہ وہ آپ کی فیور میں ہو جائے, وہ آپ کے حق میں ہو جائے اور آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. اور لاسٹ بات میرے عزیزو, انسٹیڈ آف ورکنگ ان دا فیلڈ, بجائے کہ روت اوتھوں ہی اٹھا اٹھا کے بچہ ہوا ٹکڑا اٹھا اٹھا کے اپنا پیٹ پالتی, خدا نے کیا کر دیا؟ اسی کھیت کا مالکن بنا دیا. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, میرا رب کا خدا جس مشکل میں سے آپ گزر رہے ہیں, جس بیماری میں آپ ہیں, you will overcome. وہ آپ کو قوموں کا سرفراز بنائے گا. وہ جس مشکل میں آپ ہیں اس سے بھی بڑھ کر آپ کی پوزیشن کے لیے آپ کو دے دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے عزیزو, اس کا مطلب کہ وہ نہ صرف اس کھیت سے اٹھاتی رہی بلکہ کھیت کی مالکن ہی بن گئی. اس کا مطلب وہ آپ کو صحرا میں کیلا نہیں چھوڑے گا, وہ آپ کو صحرا میں سے نکالے گا. اور جو منزل, جو ہری ہری چراگاہیں, جو کثرت کی زندگی, جو ابنڈنس لائف ہے, اس میں آپ کو لے کر جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کتنے لوگوں کو کلام کے وسیلہ سے برکت ملی؟ آئے دونوں ہاتھوں کو لہرائیے. پریز دی لارڈ. اور زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے. میں نے یسوع کا شکر ادا کیا اس لاسٹ بات کے لیے کہ واقعی تو زندہ خدا ہے. جس کام کھیت میں کام کرتی تھی, کام بھی نہیں کرتی تھی, بچہ ہوا اٹھاتی تھی, اسی کھیت کی
मालकिन बन गई. क्यों? क्योंकि रूत का तवक्कल खुदा पर था और उसकी उम्मीदगाह खुदावन पर थी. कितनों का तवक्कल आज खुदावन पर है? अगर आपका तवक्कल खुदा पर है तो खुदावंद आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही काम करेगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. खुदावंद आप सबको बरकत दे. आमीन.